Hello students, today I am going to teach you plane polar coordinate system. Myself Anuradha Gupta and I am a physics lecturer in Gurukul Mahila Mahavidyalaya. So today I will start plane polar coordinate system. So if the motion, you can see here the diagram, if the position of a particle is in plane, the motion of particle in two dimension, you can see the ox and oy, two dimensional. So if the motion of the particle is two dimensional, so the position of particle at any instant can be represented by xy Cartesian form in the Cartesian coordinate system and the r theta in the plane polar coordinate system. You can see here the r is the distance of the particle P from origin O, and the line OP makes an angle theta with the x-axis. So following are the relationship between what we have to do first. Here we have to create a relationship between the Cartesian coordinate system, Cartesian coordinates and the plane polar coordinates of the particles. So first of all, if we see from triangle OAP, from triangle OAP, cos theta is equal to OA upon OP. So cos theta, OA, what is the value of OA? Here the distance between the origin to point A is, you can assume x, and the distance of point B from point O, you can assume small y. So OA is equal to XOP value, the value of OP is R. So x is equal to R cos theta. R cos theta. And again from triangle OBP, the sin theta is equal to, if this is the angle theta, you can also write this angle theta. You can also assume that. So in front of angle, this is perpendicular and hypotenuse. So from triangle OBP, sin theta is equal to OB upon OP. Then OB, the value of OB is y upon r sin theta. Then y is equal to r sin theta. So the position vector of particle P, when we try to explain the motion of any particle, three things are important. The first is the position of the particle, second is the velocity of the particle, and the third is the acceleration. So first of all, we will write here the position vector of the particle. The position vector of particle P. This is the particle P. So here we will write the position vector of particle P. You can write the position vector in the form of r vector. R vector is equal to, we know that the value of position vector xi plus yj. So x is equal to r cos theta I plus r sin theta j. This is the value of r vector. Now next step is what? We have to derive the value of velocity of this particle. So here we just do some assumption. What kind of assumption? I just draw this diagram again. Just see. थोड़ा देखेंगे यहाँ पे.
मैं डायग्राम को अगेन रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे ये होगा कि कुछ आप एक्स्ट्रा एज्यूम करेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया है। अगेन ये पॉइंट P ही है एंड दिस इज O A B। मैं चाहती तो पुराने डायग्राम में कर सकती हूँ, लेकिन वो फिर थोड़ा गंदा हो जाएगा, है ना। तो अपन थोड़ा सा सफाई के साथ काम करते हैं। P, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया है R वेक्टर। अगेन ये OX एक्सिस है, तो यहाँ पे I कैप इसका यूनिट वेक्टर और हियर J कैप यूनिट वेक्टर होगा। अब यहाँ पे एजम्पशन क्या किया जा रहा है, प्लेन पोलर में हम अज्यूम करेंगे कि वेक्टर R कैप along the radius vector R vector and unit vector theta is in perpendicular to the position vector। ये पर पोजिशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, थीटा कैप लेंगे। R कैप along the R and थीटा कैप along the पोजिशन वेक्टर R। तो यहाँ पे हमने तो एजम्पशन किए हैं। हमको करना क्या है, हमारे पास अब चूँकि हम एक न्यू कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं R और थीटा, तो हम ये चाहते हैं कि हमको यहाँ पे I और J मिल रहा है। हमको यहाँ पे I और J को एलिमिनेट करके हमको प्लेन पोलर के यूनिट वेक्टर्स लाने हैं, R कैप एंड थीटा कैप। तो उसके लिए हमने ये एजम्पशन किया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, R कैप की वैल्यू निकालते हैं। R कैप की वैल्यू क्या हो जाती है, हमने को पता है R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R। आप इसको R लिख सकते हो अपने पास। आप देखेंगे R वेक्टर की वैल्यू अवेलेबल है। मैं R वेक्टर की वैल्यू लिखती हूँ, R कैप इज इक्वल टू R कॉस थीटा I प्लस R साइन थीटा। मैंने क्या कर रही हूँ, मैं R वेक्टर की वैल्यू लिख रही हूँ अपॉन R। अब यहाँ से R कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास R कैप की वैल्यू अवेलेबल है R कॉस थीटा I प्लस R साइन थीटा J। सॉरी, कैंसिल होने के बाद कॉस थीटा I साइन थीटा J, ये हमको मिल रही है किसकी वैल्यू, R कैप की। ठीक है, अब हमको थीटा कैप निकालना है। थीटा कैप के लिए अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बनाऊं तो एक और डायग्राम बनता है। जैसे ये आपका ओरिजिन है अगेन, ठीक है, ये आपका OY दिख रहा है, ये है OY, ठीक है। R कैप R के अलॉन्ग है, तो ये मैंने R कैप बना दिया जो कि R के अलॉन्ग है। थीटा कैप R के परपेंडिकुलर है, ये थीटा कैप हमने बना दिया R के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका प्लस I है और ये आपका क्या है, माइनस I है। ध्यान से देखते जाइए एक एक चीज़। ये आपका OB है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसे परपेंडिकुलर खींच देते हैं ऐसा, ठीक है। अब हमको R कैप की वैल्यू मिल गई। हमको पता है कि ये जो R है ये OX के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो जब R OA के साथ या OX के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो R कैप भी थीटा एंगल फॉर्म करेगा। ये थीटा एंगल फॉर्म कर दिया, थीटा एंगल, सॉरी। अब अपने को पता है कि R कैप और थीटा कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, π/2 हो गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। अगर आप इनको ऐड करेंगे π/2 माइनस थीटा प्लस π/2 प्लस थीटा, तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा वैल्यू आपको 180 मिलेगा। आप इसको चेक कर सकते हो, ओके। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो हम वेलोसिटी की तरफ जाएंगे। तो अब हमको पहले इसके लिए करना क्या है, हमने R कैप की वैल्यू आप देखिए निकाल चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, हमने R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R से हमने
आर कैप की वैल्यू निकाल ली। अब हमको थीटा कैप निकालना है और थीटा कैप की वैल्यू हमको इससे मिलेगी, इस डायग्राम से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जब थीटा कैप ले रहे हैं, थीटा कैप ओ वाई के साथ देखेंगे, ओ इसको ए ले लीजिए, ठीक है, ए ले लीजिए। तो ये ओ ए है, तो थीटा कैप जो है ओ ए के साथ π/2 माइनस थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर आप इसका कंपोनेंट लोगे थीटा कैप का, तो ये आपका क्या है, π/2 के साथ ये बेस कंपोनेंट है। तो बेस कंपोनेंट ये प्लस आई है, देखिए ये ओ एक्स है, देखिए ये ओ एक्स है ना, ये भी ओ एक्स है। तो ओ एक्स के ओपोजिट, अगर यहाँ पे आई कैप है यूनिट वेक्टर, तो इसका ओपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। ये ओ एक्स, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर माइनस आई होगा। तो अगर मैं थीटा कैप का बेस कंपोनेंट निकालूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई। सबसे पहले तो क्या आएगा, माइनस आई, देखिए माइनस आई। और बेस कंपोनेंट हमको पता है क्या होता है, आधार का कंपोनेंट क्या होता है, कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस थीटा। तो थीटा कैप का नेगेटिव एक्स में जो बेस कंपोनेंट है वो क्या है, कॉस π/2 माइनस थीटा इंटू माइनस आई। अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन। अब यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर, ये आपका जे कैप है ओ बी, यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, जे कैप। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, साइन है, तो साइन π/2 माइनस थीटा। इसको जब आप अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो माइनस आई कैप साइन थीटा, ये मैं थीटा कैप की वैल्यू निकाल रही हूँ, माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारे पास आर कैप की वैल्यू आ गई, थीटा कैप की वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, आर कैप एंड थीटा कैप बोथ आर द फंक्शन ऑफ थीटा। इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है, ठीक है। अब हम आते हैं वेलोसिटी में। वेलोसिटी हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, ऊपर याद होगा xi + yj से। अब हम आते हैं नीचे, v = dr वेक्टर बाय dt, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे d/dt, और हम क्या करेंगे, r वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। यही वैल्यू होती है ना, v = dr/dt, तो हम r की जगह वैल्यू पुट करते हैं। r की वैल्यू क्या निकली थी, देखिए ऊपर देखिए, r cos थीटा i + r sin थीटा j, तो r cos थीटा प्लस j sin थीटा r, ठीक है, ये वैल्यू आई थी। अब हम क्या करेंगे, कि हम इसको एक बार डिराइव करते हैं। डिराइव करने से क्या आएगा, देखिए एक बार r का करेंगे, आएगा r डॉट cos थीटा, फिर cos का करेंगे तो माइनस r sin थीटा। अब आपको लग रहा होगा ये मैंने r डॉट क्यों लिख दिया, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये r डॉट का मतलब है dr/dt, ठीक है। तो एक बार हमने r का जब किया तो r डॉट आया, फिर cos थीटा, फिर r वैसा ही वैसा रह गया और cos का हो गया माइनस साइन, ठीक है, प्लस j, इसके मैं ब्रैकेट का नीचे लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका r डॉट साइन थीटा प्लस r cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखते हैं, आपके पास r डॉट है, आप क्या कीजिए, ये दोनों में से r डॉट कॉमन निकाल लीजिए। और एक गड़बड़ और हो गई है ना, अपन ने cos थीटा को जब cos थीटा को डिराइव किया है ना ऊपर,
जब हमने कॉस थीटा को साइन थीटा किया तो थीटा का अगेन डेरिवेशन होगा, तो यहाँ पे एक टर्म छूट गया, वो आ जाएगा आपका थीटा डॉट। यहाँ पर भी जब आप साइन को डिराइव कर रहे हो, साइन थीटा को कॉस थीटा कर रहे हो, फिर थीटा का अगेन डेरिवेशन होगा, डिराइव होगा वो, और यहाँ पे थीटा डॉट आएगा। तो दोनों स्पेस में आर थीटा डॉट आएगा। ये पावर में नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में से हम आर डॉट कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से हम आर थीटा डॉट कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो हम कॉमन निकालते हैं। जब हम आर डॉट कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए, वी वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट कॉमन निकाला तो मेरे पास आ रहा है आई कॉस थीटा प्लस जे, आप अपनी अपनी कॉपी में करके देख सकते हैं, जे साइन थीटा प्लस आर थीटा डॉट माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आर डॉट कॉमन निकाला तो ये आ गया, और आर थ्री डॉट कॉमन निकाला तो ये आया। ये जो वैल्यू है ये आर कैप की वैल्यू है, आप चेक कर सकते हो। तो ये आपका आ गया आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट, और ये वैल्यू है थीटा कैप की, यू कैन चेक थीटा कैप। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ गया आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और वो है हमारा एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमको वेलोसिटी मिल गई, ये फाइनल आंसर आया वेलोसिटी का, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन जी टी, ठीक है, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन जी टी। तो हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है, हम क्या करेंगे, अगेन वैल्यू पुट कर देंगे। d बाई डी टी आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। आर डॉट का करेंगे तो हो जाएगा आर डबल डॉट, डबल डेरिवेटिव हो गया, आर कैप एज इट इज़ रहेगा, फिर आर डॉट डी आर कैप बाय डी टी। आर कैप का करोगे तो प्लस आर का करोगे तो आर डॉट आएगा, थीटा डॉट थीटा कैप प्लस फिर थीटा का करेंगे तो आएगा आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस, अब थीटा कैप का होगा तो आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाय डी टी। हमारे पास ये टर्म नहीं है, हमारे पास ये टर्म नहीं है, हमको ये दोनों टर्म निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, निकालते हैं। हमारे पास आर कैप की वैल्यू है, आर कैप की वैल्यू क्या है, आर कैप की वैल्यू है हमारे पास, देखिए मैं लिख रही हूँ, अभी हमने निकाला हुआ है आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ये आर कैप की वैल्यू है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमको क्या चाहिए इक्वेशन में, डी आर कैप बाई डी टी, आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। डी आर कैप बाई डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, आ जाएगा माइनस आई साइन थीटा, और थीटा का अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है, एंगल में नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा दूर लिख दी हूँ ताकि वो आपको मल्टीप्लिकेशन में ना दिखे, प्लस जे कॉस थीटा और थीटा डॉट। अब थीटा डॉट कॉमन निकाल लो, थीटा डॉट आपके पास आएगा माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। ये जो वैल्यू है ये आपका थीटा कैप की वैल्यू है, थीटा डॉट थीटा कैप, ये वैल्यू आ गई। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू, थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। अब अपने को निकालना है डी थीटा कैप, भी देखिए इसमें डी थीटा कैप बाई डी टी भी है, तो इसको भी अपने को निकालना पड़ेगा। डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। आप लोग कैप लगाएंगे ज़रूर, ठीक है, मैं छोड़ दे रही हूँ,
बट आप लोग कैप यूज़ करेंगे, यूनिट वेक्टर को कैप से यूज़ लगाते हैं। माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा, इसको डिराइव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप कॉस थीटा थीटा डॉट प्लस माइनस जे साइन थीटा और थीटा डॉट, माइनस थीटा डॉट कॉमन निकालेंगे तो आएगा आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, आर कैप की है, माइनस थीटा डॉट आप चेक कर सकते हो। तो ये आपकी दो वैल्यू निकल गई, डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू एंड डी थीटा कैप बाई डी टी। अब ये दोनों वैल्यू को मैं क्या करूँगी, इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू में पुट कर दूँगी। चलिए रखते हैं, ठीक है। एक वेक्टर इज इक्वल टू, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखिए फर्स्ट स्टेप है ए की वैल्यू आर डबल डॉट आर कैप, आर डबल डॉट आर कैप, फर्स्ट स्टेप लिखा मैंने। अब देखिए आर डॉट के साथ डी आर कैप बाई डी टी है, तो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाली है थीटा डॉट थीटा कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आर डॉट तो पहले से था, तो ये मैं आर डॉट लिखती और फिर मैं डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू लिख रही हूँ थीटा डॉट थीटा कैप, देखिए थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। फिर थर्ड टर्म सेम उतरेगा, आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप सेम उतरा। फिर इसके बाद आ गया फोर्थ टर्म आर, देखिए ऊपर आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस, अब लास्ट टर्म में देखिए, लास्ट टर्म में आर थीटा डॉट टी थीटा कैप बाई डी टी, डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू आई है माइनस थीटा डॉट आर कैप, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आर डॉट और आर डॉट सॉरी थीटा डॉट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस आएगा सबसे पहले तो, है ना, क्योंकि माइनस वैल्यू आई है, तो माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर और साथ में एक टर्म और बच के आर कैप। इस तरह से ये हमारे पास पूरा, मैं आपको एंगल चेंज करके दिखा रही हूँ, ये इक्वेशन अपने पास आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आर कैप को कॉमन ले लेंगे, जहाँ जहाँ आपको आर कैप दिख रहा है आर कैप कॉमन लेंगे, तो आर कैप निकालते हैं, ये एक टर्म है आर कैप का और एक टर्म है आपके पास ये वाला, है ना, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आर डबल डॉट, देखिए आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे सेम है तो, और थीटा कैप निकालेंगे कॉमन, तो आपके पास आएगा 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट, तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में सबसे पहले आपने निकाला पोजीशन, फिर आपने निकाली वेलोसिटी, वेलोसिटी की हेल्प से निकाला एक्सेलरेशन। ये फाइनल आंसर है समतल ध्रुवित प्रकाश का प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक बहुत जल्दी आपको पोस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।